Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Rishika and this channel is about the training and job of a cabin attendant. So the people who are watching my video for the first time, please don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon so that you don't miss any of my videos. So today I am going to tell you about the different scenarios and the different situations wherein the passengers get upset or they get angry. So what are the reasons behind that and what are those situations and how you should handle as a cabin crew, as a cabin attendant whenever you face such situations. So first of all, I would like to thank all my viewers who are giving me the different suggestions for my videos and who are telling me that what are the different things and what is the information that they are looking for in my video, so that I can improve and I can make the videos on that particular thing. So thank you so much to all my viewers, and now I will start with the different scenarios. I want to tell you that this topic is very vast because there are n number of situations and n number of scenarios on board whenever you are there as a cabin attendant. But for now I will be sharing one or two examples. If you want me to share all those scenarios, all those possible scenarios that someday I have experienced or someday you may experience in your cabin crew life, then please tell me so that I will make the video on that separately in different parts. So let's get started. What are the things that make a passenger upset? Because passenger अब जब भी flight पे आ रहे हैं तो they are paying a lot, and please do understand the importance of all the passengers, be it high profile passenger or an economic passenger. कोई भी passenger आ रहा है अगर on board तो it is equally important to you. आप कभी भी डिस्टिंग्विश या डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी पैसेंजर में कि जी ये तो वीआईपी पैसेंजर है तो हम तो इनको अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे या इनको हम अपना 100% अटेंशन देंगे, बट जो इकोनॉमी वाला पैसेंजर है हम ठीक है उनको अगर हम बाद में भी अटेंड करेंगे तो भी चलेगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट. सो प्लीज कीप दैट इन माइंड दैट एवरी सिंगल पैसेंजर ऑन बोर्ड इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू अस. So don't even try to forget this thing, because यही सबसे बड़ी चीज़ है जो पैसेंजर को अपसेट करती है या पैसेंजर को एंग्री करती है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पैसेंजर आस्क्ड फॉर वाटर एंड यू कुड नॉट गिव हिम ऑन टाइम. उसके बाद में उसी बीच में किसी और पैसेंजर ने आपसे वाटर रिक्वेस्ट किया और आपने वो वाटर रिक्वेस्ट कंप्लीट कर दिया, मतलब आपने उनको वाटर सर्व कर दिया. बट उतने में उस पैसेंजर ने देख लिया कि इनने मुझे अभी तक पानी सर्व नहीं किया है. इट्स बिन 5 minutes. 5 मिनट हो गए, आपने दूसरे पैसेंजर को वाटर सर्व कर दिया बट नॉट दैट पैसेंजर. So in that case, it's 100% guarantee that the passenger will definitely get upset on you because you didn't serve water to him or her, और आपने किसी दूसरे पैसेंजर को वाटर पहले सर्व कर दिया. तो वो माइंड. सो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू, अगर आपसे किसी ने वाटर रिक्वेस्ट किया है, you cannot remember the face of all the passengers. कि आपने यहाँ पर किसी पैसेंजर ने देखा, उन्होंने आपसे वाटर रिक्वेस्ट किया, आपने देखा, आप जाके कैबिन में इधर ढूंढ रहे हैं कि कौन सा पैसेंजर था जिसने मुझसे वाटर रिक्वेस्ट किया था. सो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हेनेवर यू आर आस्क्ड फॉर समथिंग, जब भी कोई पैसेंजर आपसे कोई भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, be it water request or any other thing, you should first see the seat number of that passenger. आप सीट नंबर ध्यान में रख लीजिए कि जी 4 डेल्टा का पैसेंजर है, उन्होंने मुझसे वाटर रिक्वेस्ट किया था. 4 डेल्टा मीन्स 4D, जो भी सीट नंबर होता है उस पर. तो
उस सीट पे जो पैसेंजर बैठे हुए उन्होंने मुझसे वाटर रिक्वेस्ट किया था, तो आप सारा काम छोड़ करके सबसे पहले उस पैसेंजर का वाटर रिक्वेस्ट कंप्लीट करेंगे। आप पहले उनको वाटर सर्व करेंगे, ओनली देन यू विल गो टू सम अदर थिंग। उसके बाद ही आप कोई और दूसरा काम करेंगे, बिकॉज वंस वो आपके दिमाग से स्किप हो गया देन यू कांट हेल्प इट। या फिर बाय चांस आप बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं और आप अभी तुरंत जाकर वाटर सर्विस नहीं कर सकते हैं, तो इन दैट केस यू कैन टेल योर फेलो क्रू मेंबर्स कि प्लीज सर्व वाटर टू 4 डेल्टा पैसेंजर, सो दैट उनका रिक्वेस्ट तो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएगा, आपके ऊपर वो चीज़ नहीं आएगी, पैसेंजर भी अपसेट नहीं होंगे, तो आपको ये लगेगा कि हाँ ठीक है, मैंने अपना भी काम कंप्लीट कर लिया प्लस पैसेंजर को भी वाटर ऑन टाइम सर्व कर दिया। सो दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Now, if you forgot and you have served water to the other passenger, then what will you do? पैसेंजर ने आपसे पूछा कि आपने तो उनको वाटर सर्व किया, मुझे सर्व ही नहीं किया, और बाय चांस वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, क्योंकि या तो रीज़न होते हैं पैसेंजर के भी गुस्सा होने के, वो ऐसे ही इतनी छोटी सी बात को लेकर गुस्सा नहीं हो सकते, मे बी उनको कोई बहुत अर्जेंट मेडिसिन लेनी थी जो लेने के लिए उनको पानी चाहिए था, बट आपने उनको ऑन टाइम वाटर सर्विस नहीं किया, या फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके किसी तरह फ्लाइट पे उन्होंने बोर्ड किया है एंड ही इज़ फीलिंग डिजी, या उनको बहुत अजीब सा फील हो रहा है, नॉजिया फील हो रहा है एंड ही इज़ फीलिंग लाइक सिपिंग सम वाटर, तो उस केस में भी आपको अर्जेंट नीड में ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आप एक गिलास पानी जा करके पहले उस पैसेंजर को दें, ताकि ही शुड फील बेटर और द पैसेंजर शुड फील गुड। उसके बाद में अगर आप बाय चांस ये चीज़ नहीं कर पाए और पैसेंजर ने ये देख लिया कि आप यू आर रोमिंग अराउंड इन द कैबिन एंड यू आर giving water to the other passengers but not him or but not her, then what will you do? You just need to stay calm, and just because it's your fault, you are wrong on your place, then you have no right to argue with the passenger or say anything else to the passenger. First of all, apologize properly in front of passenger and quickly get some water for him or her. आप जितना जल्दी जाकर उनके लिए एक ग्लास पानी या एक बॉटल पानी लेकर आएंगे उतना जल्दी वो हेल्प करेगा, बिकॉज उनको गुस्सा इसी बात पर है कि आपने उनको पानी नहीं दिया। तो अनलेस एंड अनटिल यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग डिफरेंट थिंग्स इन फ्रंट ऑफ द पैसेंजर, यू जस्ट गो एंड गेट वाटर फॉर हिम, and then also if he is angry or if the passenger is upset, then you will still try to apologize and calm down the passenger by saying that I'm really sorry sir, or I'm really sorry ma'am, for not serving you water on time, but I was really stuck with something important, that's why I couldn't come and serve you water on time, but now I make sure that it won't happen again. Whatever you want on flight, I will make sure that it is served you on time. And if still you feel that the passenger is not convinced and is not happy, then just offer him something, like something to drink, like juice or something to eat, something to munch on. आप जो भी फूड एंड बेवरेजेस में से उनको ऑफर कर सकते हैं वो आप उस टाइम पे उनको ऑफर करिए, बिकॉज अगर किसी को मेडिसिन लेनी थी तो ऑब्वियसली ही इज़ अ पेशेंट, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम सम और द अदर डिजीज़, तो आप उनको ये चीज़ ऑफर कर सकते हैं। तो आप उनको जब भी कुछ खाने के लिए या पीने के लिए ऑफर करेंगे तो द पैसेंजर विल फील दैट although this is not the procedure for them, but still the person, this cabin attendant is offering me to have something so that I feel better. तो वो चीज़ उनको थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ now at least they are paying attention to me. And अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और रीज़न है जो उनको अपसेट कर रहा है, जैसे कि उनको अनईजी फील हो रहा है या नॉजिया फील हो रहा है, वॉमिटिंग फील हो रहा है, तो आप उनसे पूछो सर इज़ देयर एनीथिंग दैट आई कैन डू फॉर यू। आपको अपनी तरफ से ये इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है। अगर आप ये सारी चीज़ें पैसेंजर को बोलते हैं तो धीरे धीरे पैसेंजर को अपने आप ये चीज़ लगेगी कि हाँ दैट वाज अ जेन्युइन मिस्टेक, एंड कहीं
obviously the crew was busy, that's why they couldn't serve me water on time. And in the end कैसे भी करके पैसेंजर कन्विंस हो ही जाएंगे, ठीक है। और फिर भी अगर नहीं होते हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप वहाँ से दूर चले जाओ और आप अपने फेलो क्रू मेंबर्स में से किसी को भी भेजो एंड टेल देम टू हैंडल द सिचुएशन फर्दर। तो फिर अगर कोई और व्यक्ति जाता है और स्पेशली इफ द सीनियर कैबिन अटेंडेंट गोज, या अगर लीड क्रू जाते हैं, तो वो अगर जा रहे हैं पैसेंजर के सामने तो ऑब्वियसली वो एक अलग इम्पैक्ट होता है। तो अगर आपसे कोई गलती हुई है, आप जाओ अपनी लीड को बताओ या अपने सीनियर कैबिन अटेंडेंट को बताओ और उनको बोलो कि दिस इज द थिंग, दिस इज द मिस्टेक आई हैव डन एंड द पैसेंजर इज रियली अपसेट, सो प्लीज जस्ट गो एंड हैंडल हिम और हैंडल हर, सो दैट उनको ये भी लगेगा कि ठीक है आपने अपनी तरफ से ट्राई किया पूरी तरह, आपने अपनी तरफ से उनको सारे ऑप्शंस दे दिए, आपने उनको अपोलोजाइज किया, हर एक चीज़ आपने अपनी तरफ से कर ली। उसके बाद में भी इट्स नॉट दैट यू जस्ट लेफ्ट द पैसेंजर कि हाँ ठीक है वो नहीं मान रहे तो मैं क्या करूँ, यू डिडंट डू दैट, यू वेंट टू योर सीनियर कैबिन अटेंडेंट एंड यू रिक्वेस्टेड हर और यू रिक्वेस्टेड हिम टू टेक केयर ऑफ द पैसेंजर। तो उसके बाद में जब वो देखेंगे कि हाँ सीनियर कैबिन अटेंडेंट ने मुझे पर्सनली आकर पूछा है कि सर व्हाट्स रॉन्ग, या मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, वी रियली अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक, या वी रियली अपोलोजाइज फॉर नॉट सर्विंग वाटर ऑन टाइम, ये सारी चीज़ें जब सीनियर कैबिन अटेंडेंट जाकर बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली द पैसेंजर विल गेट काम डाउन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरीके से आपको हैंडल करना होता है। बट फॉर ऑल दोज थिंग्स यू नीड टू कीप दिस इन माइंड दैट द पैसेंजर इज राइट और रॉन्ग, पैसेंजर इज ऑलवेज राइट, क्योंकि पैसेंजर इज द वन हु इज पेइंग फॉर दिस फ्लाइट। क्योंकि पैसेंजर कंप्लेंट्स बहुत सीरियसली ली जाती है, आप चाहे कोई भी एविएशन हो या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, आप कहीं पर भी देखें, कोई भी आपके गेस्ट हैं, कोई भी आपके पैसेंजर्स हैं, उनकी अगर कोई भी कंप्लेन है तो वो बहुत सीरियसली ली जाती है। तो यू कैन नॉट इग्नोर योर पैसेंजर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सो प्लीज बी वेरी पेशेंट टू calm down the passengers if they are upset with you or if they are upset with any other problem or any other issue. This was just the basic example of passenger getting upset on something, but other than this there are so many examples that I have to share with you all, but it's just that I want you all to please comment in the comment section below so that I can understand that whether you want to know about the different situations and scenarios or not. Or other than that, I would like to say that thank you so much for watching my videos, and I will be really coming back soon with my next video. Till then, please like, share and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon so that you don't miss any of my videos. Thank you so much for watching my video. Ta-da, bye-bye.